ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی. لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا. جب لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو لوط علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے. اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی. اتأتون الذکران من العالمین، تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے عورت ہے اس کے پاس نہیں جاتے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قرآن کہتا ہے، قوم کہتی ہے کہ آپ ہماری بستی چھوڑ کر چلے جائیں، اگر آپ کو ہمارے عمل پہ اعتراض ہوتا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ بڑا نیک تھا سوائے ان کی بیوی کے. یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی، کافر ہو جائے گی، بدکار نہیں ہوتی. حدیث سے بات ثابت ہے، وَلِدتُّ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے نسب کیا ہو جاتا ہے پیغمبروں کا. بولو نا بھائی، بیوی خیانت کرے تو نسب کس کا خراب ہوگا؟ شوہر کا نا. تو اللہ پیغمبر کو کبھی ایسی عورت نہیں دیتے جو زنا کر لے، کیونکہ اس سے پیغمبروں کا نسب کیا ہوتا ہے؟ خراب. اور پیغمبر کا نسب خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سفیر سے اب لوگوں کا اعتماد ختم. تو کافر ہو جائے گی مگر بدکار نہیں ہوتی. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے ہمیں اجازت دی عیسائی عورت اور یہودی عورت سے بھی شادی کی، حالانکہ وہ کافر ہوتی ہے، مگر بدکار عورت سے نکاح کو پسند نہیں کیا. میرے پاس کوئی کیس آتا ہے کہ بیوی زنا کرتی ہے، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، میں کہتا ہوں تعلق فوراً کیا کر دو، اس کو طلاق دے دو. کیونکہ طلاق نہیں دی آگے نسب بچے میں کیا ہوگا، نسب میں کیا ہوگا؟ شبہ پیدا ہو اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. مرد کے زانی ہونے سے بھی بہت برائی آتی ہے، بہت گندا عمل ہے، خاندان تباہ ہوتا ہے، عورت اور بچوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں، لیکن نسب خراب نہیں ہوتا اس سے. عورت کے بدکار ہونے سے کیا ہوگا؟ نسب میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ شک پیدا ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے مرد اگر زنا کرے 4 گواہ ہوں گے تو اس کو سزا دی جائے گی، عورت زنا کرے 4 گواہ ہوں گے تو سزا دی جائے گی. لیکن اگر شوہر زنا کرے 4 گواہ نہیں ہے تو بیوی سزا نہیں دلوا سکتی، مگر بیوی گناہ کرے زنا کرے 4 گواہ نہیں بھی ہیں تو شوہر لعان کے ذریعے سزا دلوا سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کہ شوہر نے اگر زنا کیا تو بیوی کا نسب تھوڑی خراب ہو رہا ہے، اس سے اولاد کا شبہ نہیں آ رہا، لیکن بیوی اگر زنا کر رہی ہے تو شوہر کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بچوں میں نسب میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے نا، شبہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں شریعت نے مرد کو حق عورت کی نسبت زیادہ دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ زنا کی حد جاری کروا سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن عورت اپنے شوہر پہ زنا کی حد جاری نہیں کروا سکتی جب تک 4 گواہ نہ ہو اس کے پاس. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے عورت کے لیے یہ عمل اس لیے زیادہ برا ہے کہ اس سے نسب میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خلق. تو پیغمبروں کی بیویاں کافر تو گزری ہیں مگر زانی نہیں گزری. تو لوط علیہ السلام کی بیوی میں برائی یہ تھی کہ وہ زنا تو نہیں کرتی تھی مگر وہ لوگوں کو پتہ بتایا کرتی تھی لڑکوں کا کہ فلاں علاقے میں خوبصورت لڑکا ہے. کوئی بھی اس کو ہوتا ہے نا کہ یہ والا کام کہ تم ادھر پہنچ جاؤ، ایسا کرو. زنا تو اس قوم میں ویسے ہی نہیں تھا، عورت کی رغبت ہی نہیں تھی. تو لوط علیہ السلام کے جتنے اہل و عیال تھے سب حضرت لوط علیہ السلام کو مانتے تھے. اللہ نے اس خاندان کو اس برائی سے بچایا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کی بیوی ہو کر لوگوں کو لڑکوں کا پتہ بتایا کرتی تھی. اللہ نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب عذاب آئے گا تو آپ کے پورے خاندان کو بچاؤں گا مگر آپ کی بیوی کو نہیں، یہ ہلاک ہوگی اسی عذاب. تو قرآن کے اب الفاظ دیکھیں، لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے عورت. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکے بھیجے، یعنی فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، وہ تو جانتے نہیں تھے، وہ کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے. ابھی وہ آ کے بیٹھے ہی ہیں، قرآن کہہ رہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ اچانک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. حالانکہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے پہلے آپ پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا، کہاں سے آنا ہوا، اور خیریت، کھانا کھائیں گے، یہ پوچھتے ہیں نا. لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا کہ وہ آئے ہیں انسانی شکل میں، ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ بھنا ہوا بچڑا سامنے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے تو یہ اس علاقے کے نہیں، کیونکہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں تو بھوک لگی رہی ہوگی، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو تکلف میں منع کر دیں، بھنا ہوا بچڑا فوراً اور بچڑا
हम बकरे को रोते हैं। और वहां क्या हुआ, हालांकि गरीब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बछड़ा लाके रख दिया, ले वही खाया। हमारे यहाँ क्या होता है, एक साहब कहने लगे, मैं गया अपने रिश्तेदारों के घर, उन्होंने कहा आपने खाना खा लिया? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं। कहने खाया होता तो चाय पिलाता आप। कहने खाने से भी गए और चाय से भी, खाने से भी गए और चाय से भी गए। अच्छा खैर, तो फमा लबिसा, अभी ठहरे ही नहीं है कि बना हुआ बछड़ा सामने लाके रख दिया। फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहिम, जब देखा कि इनके हाथ इसकी तरफ बढ़ते ही नहीं है। भाई जब ऐसी चीज सामने लाके रखी जाती है इतनी मजे की, तो तीन हालतें होती हैं, या तो आपको भूख लग रही होती है तो आप खाते ही हो पेट भर के यार, दूसरा आपको भूख नहीं भी लग रही होती तो फिर भी आप कहते हो इतनी मजे की चीज है, चारने वाले तो ले लो। और अगर फिर भी दिल नहीं कर रहा तो आप मेजबान की मेहनत की कदर करके खाते हो कि इसने इतनी मेहनत से बनाया, एक निवाला भी नहीं खाऊंगा तो इस पे क्या गुजरेगी। लेकिन कुरान कह रहा है कि जर्रा बराबर भी हाथ नहीं बढ़ा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफजदा हुए कि ये तो बिल्कुल भी हाथ नहीं बढ़ा रहे, कि दुश्मन तो नहीं है, ये क्या है। इसलिए कि उस जमाने में दस्तूर था कि जो जिस घर में खाना खा लिया करता था, फिर वहां से दुश्मन कभी नहीं खाना खाता था। वो कहते यार हम जिस प्लेट में खाना खाएं उसी में छेद करें, ये कैसे हो सकता है, हम तो लड़ने के लिए आए हैं ना, हम खाना क्यों खाएं, हमारे यहाँ खाओ पियो तमीज से बैठ के, फिर उसकी जेब से बटवा निकाल के चले जाओ। ऐसा ही होता है, बाज़ दफा मेहमान घर में आता है, उस खाएगा पिएगा रात गुजारेगा और दराजों में घुस के चीजें निकाल के निकल लेगा यहाँ से, ऐसा भी होता है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गए कि ये कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं, अजनबी हैं, इस इलाके के भी नहीं है, पता नहीं क्या मुझे नुकसान ना पहुंचा दें। तो औजस मिनहुम खीफा क़ालू ला तखफ, कहने लगे घबराइए मत, इन्ना रसूल रब्बिक, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है, हमारे लिए बछड़ा और पत्थर बराबर है, ये कुछ भी नहीं है, इसका हम रग़बत ही नहीं है हमें इन चीजों की तरफ। भाई क्यों आए हो फिर? कहने लगे हम फरिश्ते हैं, इंसानी शक्ल में आए हैं आपको खुशखबरी देने के लिए। और पहले अपना असल मकसद बताया कि हम आए हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए। अभी हम यहां से कहां जाएंगे? कौम लूत के पास, और उस कौम को हम तबाह कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम झगड़ने लगे। अल्फाज देखें कुरान के, युजादिलुना, हमसे झगड़ने लगे। किससे? अल्लाह से। असल में झगड़ते नहीं, यानी वो बार बार ये कहने लगे कि किसी तरह वो कौम बच जाए। तो इतना अल्लाह के पीछे पड़े कि अल्लाह ने उस अमल को झगड़ने से ताबीर किया। जैसे कोई भिखारी हमारे पीछे पड़ जाए ना बार बार अल्लाह के, हम कहते हैं यार तू तो फड्डे पर आ गया है, हालांकि भिखारी तो नहीं लड़ता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि किसी तरह ये कौम तबाही से बच जाए। तो फिर कहने लगे उसमें तो कौम लूत भी है और उसमें तो उनके अहलो अयाल भी हैं। अल्लाह ने फरमाया नहनु अअलमु बिमन फी, हमें पता है कौन कौन है, किसको बचाना है, आप उसकी फिक्र ना करें। इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, अल्लाह फरमाते इब्राहिम बड़े नरम दिल और बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाले थे। वो चाह रहे थे कि कौम तबाह ना हो। फिर बशारत दी गई उनको कि हम आपको भी एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं, और वो खुशखबरी क्या है कि अल्लाह आपको औलाद देगा। वो औलाद कौन होगी? इसहाक, पैगंबर होंगे, और इसहाक के फिर औलाद होगी याकूब। ये दोनों, आपका बेटा भी पैगंबर और आपका पोता भी पैगंबर। आप जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी सुनाई तो आपकी जो ज़ौजा थी हजरत सारा, वो बूढ़ी हो चुकी थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी जो आपकी पहली बीवी थी। वो दरवाजे के किनारे पे खड़ी हुई तो फसक्कत वजहहा, उन्होंने अपना माथा ऐसे करके, जैसे बूढ़ी औरतें नहीं हाय नास, और कहने या वही लता, हाय बदबख्ती, हाय तेरा नास हो, ऐसे कहते हैं ना। अरे नास हो तेरा, कैसी बातें कर रहे हैं। अलीदू, मैं बच्चा जनूंगी, वह अना अजूजुन, मैं बिल्कुल बुढ़ी हो गई, वह हादा बाली शैखा, और ये वाला मेरा मियां, इशारा करके कह, और ये मेरा मियां जो बूढ़ा हो चुका है, यानी कैसी बातें कर रहे हो। तो फौरन फरिश्तों ने कहा अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, तुम्हें अल्लाह के फैसलों पर एतराज हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, कि ए घर वालों तुम पर अल्लाह की रहमतें और बहुत सारी बरकतें, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो, तुमने तौहीद के लिए कुर्बानियां दी, तुमने हिजरत की है भाई, और ये मेरे खलील है, तो तुम्हारे आमाल ऐसे हैं कि तुम्हारे सामने ऐसा हो जाना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो फिर वो कौम आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देके। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस खुशखबरी के बाद अल्लाह ताला से कहा कि वो कौम को क्यों हलाक कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया अअरिद अन हादा, ए इब्राहिम इस बात को छोड़ दे, इन्नहु कद जाअ अम्रु रब्बिक, तेरे रब का फैसला हो चुका है, अल्लाह उस कौम को तबाह करेगा लाज़िम। तो फिर वो फरिश्ते सफर करके गए हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम के। वो तो एकदम से पहुंच गए होंगे, जब आसमान से नीचे इतनी आराम से आ गए तो लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ चले गए। वो लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, मेहमान आए हैं, उनको बिठाया, और जैसे ही लूत अलैहिस्सलाम की नजर उन नौजवानों पे पड़ी, बड़े खूबसूरत लड़के थे, नौजवान थे, तो लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे आज का दिन बहुत सख्त गुजरेगा मुझ पे। जैसे ही उनको देखा ना, लोग तो मेहमान से खुश होते हैं ना, पैगंबर तो, लेकिन पैगंबर उनको देख के खुश नहीं, कि मेरी कौम को पता ना चल जाए
तो ये मेरे मेहमान हैं, मेरी कौम मुझे रुस्वा कर देगी इनके सामने, इनसे बदकारी करेगी। तो बहुत परेशान होकर कहने लगे ये बड़ा सख्त दिन है जो आज मुझ पर आया है। कुरान कह रहा है वजा अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, जो शहर के लोग थे वो खुशियां मनाते हुए आ गए और लूत अलैहिस्सलाम के घर का उन्होंने क्या कर लिया, घेराव। अब लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर जो है ना, जो भी गैरतमंद आदमी होता है वो मेहमान के बारे में बड़ी गैरत रखता है कि कोई मेहमान घर में बैठा हो उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। लोग कहते हैं ना भाई जो भी करना हो बाहर जाके लड़ो, ये जब तक मेरे घर में है तो मेरा मेहमान है ये। अब लूत अलैहिस्सलाम परेशान, जो शहर वाले लोग आए और आगे कहने लगे कि अवलम नन्हका अनिल आलमीन। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, ये मेरे मेहमान हैं, फला तफ़ज़हून, मुझे इनके सामने रुसवा मत करो। इनकी रुसवाई किसकी रुसवाई है? मेरी रुसवाई। और हाउलाई बनाती इन कुंतुम फ़ाइलीन, ये मेरी बेटियां हैं, इनसे निकाह करो। उलमा ने लिखा है कि सगी बेटियां भी हो सकती हैं और ज्यादा गालिब ये है कि अंबिया चूंकि रूहानी बाप होते हैं ना, तो इस हवाले से अपनी कौम की बेटियों को उन्होंने क्या कहा, अपनी बेटियां का, इनसे निकाह करो तुम। तो वो जवाब में क्या कहने लगे, अवलम नन्हका अनिल आलमीन मा लना फी बनातिका मिन हक़्क़िन, आपको पता है कि हमें औरत से निकाह में रग़बत नहीं है, क्यों मशवरे दे रहे हो शादी करो, क्यों आप मशवरे दे रहे हो हमको। और दूसरा ये कि अवलम नन्हका अनिल आलमीन, आपको पहले ख्याल करना चाहिए था, आपको जब हमारी आदत का पता है तो ये बात आपको पहले सोच लेनी चाहिए थी कि आप ऐसे लोगों को घर में दाखिल, आपने ऐसे लोगों को घर में, इतने खूबसूरत नौजवान लड़के आपने इनको घर में दाखिल होने क्यों दिया। अब देखो उल्टा तंज किस पे कर रहे हैं। और उधर कुदरत का फैसला क्या है कि इनको गुनाह में मस्त होने दो। उलमा ने लिखा है कि किसी इलाके में अगर गुनाह आसान हो जाए तो ये अल्लाह की रहमत की दलील नहीं है, बल्कि ये इसकी अलामत है कि अब अल्लाह ने पकड़ने का फैसला कर लिया है। क्योंकि अल्लाह की कुरान में जगह जगह आता है सनस्तदरी जो हम जब गुनहगार को पकड़ते हैं ना तो उसको मोहलत देते हैं, उसको गुनाह उसके लिए क्या कर देते हैं, आसान। पहले मुश्किल होता है गुनाह ताकि ये तौबा कर ले, मुश्किल हो इसको गुनाह में, फिर अल्लाह उसके लिए क्या कर देते हैं, कोई जिना करता था और जनाब उसको यहाँ जिना मुश्किल हो रहा था, उसका जनाब यूरोप के किसी मुल्क का वीजा लग गया, अब वहां कोई पूछने वाला नहीं, वो समझता है अब अय्याशी करूंगा। ओ भाई अब तेरे घिर जो है ना, घेरा क्या हो रहा है, तंग हो रहा है। तो इतने खूबसूरत नौजवान तो उन्होंने कभी देखे नहीं थे, तो वो इतने खूबसूरत नौजवानों को देखकर मदहोश हो गए और वो समझ रहे हैं कि गुनाह का रास्ता आसान हो रहा है। हालांकि ये आसानी अल्लाह इसलिए कर रहा था कि अल्लाह की हुज्जत इन पर, बोलो भाई, तमाम हो जाए और अल्लाह इनको पकड़े इस अजाब में। तो अभी लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि निकाह करो, वो कह रहे हैं, और निकाह का मशवरा लूत अलैहिस्सलाम क्यों दे रहे हैं, ये भी समझने की चीज है। लूत अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे 4 महीने के लिए तबलीग में निकल जाओ, क्या ख्याल है, खानका है वहां जाओ अपनी इस्लाह कराओ, ये भी तो कह सकते थे ना, अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, इससे तुम्हारे दिल में ये बुराई क्या हो जाएगी, खत्म। ना ना ना, ये नेचुरल तरीका इलाज का। अरे भाई एक आदमी गुर्बत की वजह से चोरी कर रहा है तो असल क्या है कि हलाल तरीके से उसका पेट भरने का इंतजाम कर दो तो चोरी छोड़ देगा ना। भाई एक आदमी को भूख लगती है, पैसे नहीं है रोटी खरीदने के, अब वो जा जाके कभी उसकी रोटी चुरा रहा है, कभी उसकी रोटी चुरा रहा है, आप उसको तबलीग में भेज रहे हैं। तो भाई असल ये है कि इसको कोई जॉब दिलवा दो ताकि ये हलाल तरीके से पेट भरेगा, तो 2 पराठे जब अपने पैसों से खरीद के खाएगा तो चोरी का पराठा कोई फ्री में भी देगा, तो फिर तो हदिये में भी कोई पराठा देगा। तो जब आपका पेट हलाल से भर जाता है, फिर अगर कोई आपको बुलाता है कि खा लें, आप कहें भाई पेट भरा हुआ है और कितना खाऊं, यही होता है ना। तो लूत अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश अल्लाह ने हर शख्स में रखी है, अगर इस ख्वाहिश को हलाल तरीके से इस्तेमाल करोगे तो हराम के लिए बचेगी नहीं। इतनी थोड़ी ख्वाहिश होती है इंसान में, बचेगी नहीं फिर ये हराम के लिए। इसलिए लूत अलैहिस्सलाम उनको मुहासबों और मुराकबों का नहीं कह रहे, उनको क्या कह रहे हैं, निकाह करो, ताकि ये जब इधर से जायज तरीके से पूरी होगी तो इधर से तुम्हारी तवज्जो हटेगी। आज मुसीबत हमारे साथ ये है कि नौजवान तबके गुनाहों में पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पर फोश फिल्में देख रहे हैं, बेहुदा फिल्में देख रहे हैं, लड़कों से बदकारी की बीमारी फैल रही है, जिना फैल रहा है, लेकिन इसके वो तरीके बताए जाते हैं जो मौसर नहीं है। तबलीग में भेज देंगे, उस तबलीग में जाना बहुत जरूरी है, मगर उसके लिए ज्यादा जरूरी निकाह है, शादी पहले फिर जाए तबलीग में। वो इस हालत में तबलीग में चला गया, फायदा यकीनन होगा, लेकिन ऐन मुमकिन है वहां किसी को खराब करके आ जाइए, होता है ऐसा भी, वहां भी किसी को खराब करके आ सकता है। तो भाई जो अल्लाह ने जाए, पहले किसको फोकस करो। एक साहब का फोन आया, फौज में बड़े ऑफिसर हैं, वो जमात में गए हुए थे, तो वहां मस्जिद में एक नौजवान जो उसकी 25 साल उसकी उम्र थी, वो नौजवान आया, कह रहे कि वो बताने लगा कि मुझे ना ये बीमारी है, मैं फोश फिल्में देखता हूँ और नेट पर ये काम और उल्टे काम, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि वो उनको एक साहब ने कहा कि आप हमारे साथ जमात में वक्त लगाएं। तो कह रहे मैंने उससे कहा कि भाई तुम शादी करो पहले। अब इख्तलाफ हो गया, मैं कह रहा हूं, वो मेरे बयान सुनते थे, कह रहे हम कह रहे हैं कि निकाह करो, वो कह रहे हैं कि चिल्ले के लिए जाओ। मुझे फोन किया, मैंने कहा इससे कहो निकाह करो, कुछ वक्त बीवी के पास गुजारो, फिर चिल्ले के लिए चले जाओ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं पहले चिल्ला फिर निकाह। मैंने कहा ना ना ना, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये इसी हाल में, और शादी के लिए वो कर भी सकता था, उसको कोई तरगीब देने वाला नहीं था, वो समझता दुनिया का सबसे फजूल काम क्या है,
शादी है। तो अगर उसको ताखीर कर दी तो मुमकिन है जो रिश्ता उसका होने वाला है वो हाथ से निकल जाए। और ये भी मुमकिन है इस 40 दिन के दौरान जब एक आदमी गुनाह कर करके चंद दिन वक्फा होता है ना, तो और भर के आता है, फिर वो फिर क्या हो जाता है, पूरा अंदर से एटम बम बन के आता है वो, ठीक है ना। 40 दिन तक उसने गुनाह नहीं किया तो वो ऐसा उसके दिल में चिल्ले के दौरान गुनाह के ख्यालात आएंगे कि वो कहेगा बस किसी तरह चिल्ला खत्म हो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। ये भी बाज दफा उल्टा भी हो जाता है, मैं ये नहीं कहना हमेशा ऐसे होता है, बाज दफा तो तौबा करके आता है, लेकिन बाज दफा क्या होता है और उल्टा असर हो जाता है। तो भाई जो हल अल्लाह उसके रसूल ने बताया वो क्या है, सबसे पहले क्या है, निकाह करो, कुछ वक्त बीवी के साथ गुजारो, फिर चिल्ले पे खुद भी जाओ, बल्कि मैं कहता हूं फिर बेगम को भी लेके जाओ, फिर बेगम को भी लेके जाओ। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा पसंद किया है इस अमल को कि जो जब मियां बीवी का निकाह हो तो अल्लाह ये चाहते हैं कि अब इनका हर काम क्या होना चाहिए, मुश्तरक। देखो तहज्जुद में तन्हाई पसंद है ना अल्लाह को, लेकिन बीवी वाली किस बगैर तन्हाई हो ये पसंद नहीं है। हदीस में आता है अल्लाह उस शख्स को देख के हंसते हैं जो रात को आखिरी हिस्से में खुद भी उठता है और अपनी बीवी को उठाता है, वो ना उठे तो गालिबन पानी की छींटे मारने का है ना, पानी की छींटे मार के उसको उठाता है और वो दोनों साथ मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। और उस औरत की को भी देखकर अल्लाह हंसते हैं, ये हंसना किनाया, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जो तहज्जुद के लिए उठती है उसका मियां पड़ा हुआ है तो वो उसको भी उठाती है, वो नहीं उठे तो पानी की छींटे मार के उठाती है और वो दोनों मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज। हालांकि तहज्जुद में तो तन्हाई मतलूब है ना, अकेले हो, लेकिन यहां जहां सबसे ज्यादा तन्हाई चाहिए वहां भी अल्लाह कह रहे हैं बेगम क्या होनी चाहिए, साथ। नहीं यार बात मेरा ख्याल है क्यों। और कुरान के अल्फाज देखो, आज जो हमने सूरत पढ़ी है तरावी में, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, ये टेक्निकल बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, इनकी कदर करो। कुरान कह रहा है क़यामत का ऐसा वहशत वाला दिन होगा कि इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। भाई को अल्लाह ने क्या कहा, भाई। वसाहिब यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, अपनी मां से भी दूर भागेगा। वो कहेगा भाई मैं अपने आप को बचाऊं, ये अम्मा कहां से आ गई है, इस मुसीबत में अम्मा गई मेरी नेकियां ना मांग ले मुझसे, ये डर होगा, बस अपने आप को बचाओ। तो कुरान के अल्फाज क्या है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, व उम्मिही, अपनी मां से दूर भागेगा, व अबीही, अपने बाप से दूर भागेगा, व साहिबतिही, यहां बीवी नहीं कहा बीवी से, बल्कि उससे जिसके साथ ये रहा करता था। नहीं यार ये बात समझ में मेरा, हालांकि रहता तो भाई के साथ भी है, रहता तो बाप के साथ भी है, रहता तो मां के साथ भी, लेकिन बीवी के लिए साहिबा का लफ्ज, साहिबा कहते हैं जो हमेशा आपके साथ रहती। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि औरत का मकसद ये होता है कि फुलतुरु की तरह चिपक गई है अभी तुम्हारे साथ। जब शादी होती है ना तो मकसद क्या है, अब ये फुलतुरु की तरह, अब हज पे भी जा रहे हो तो इसको भी लेके, उम्रे पे जा रहे हो तो इसको लेके, साहबा मैदान जिहाद में जा रहे हैं तो बीवी को लेके जा रहे हैं। तो ये शरीफ आदमी की अलामत होती है, कहीं तफरीह पे जा रहा है तो बेगम उसके साथ फुलतुरु की तरह चिपकी हुई। इसका फायदा ये होता है कि वो पिकनिक पे इधर उधर आंख मटकने की कोशिश, उसको पता होता है फरिश्ते शायद मेरी ऐसी निगरानी ना करें जैसी ये कर रही, तो बुराइयों से भी बचता है इंसान। और सफर में जाने के बाद इंसान में जो ख्वाहिश पैदा होती है, शहवत पैदा होती है, घर से दूरी की वजह से उसके नाजायज तरफ जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेगम तो है नहीं, और खतरा इसलिए भी होता है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। अपने शहर में, अपने मुल्क में तो आदमी बुराई करते हुए डरता है ना कि पकड़ा जाऊंगा, लोग बोलेंगे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, तू तो वही है ना जो उधर रहता है, गोले घंटे की दुकान के साथ रहता है, तू पकड़ लेते हैं। किसी और मुल्क में कौन, किसको क्या पता कौन है, तो जिना की तरफ जाने के इम्कानात क्या होते हैं। तो वहां बेगम अगर साथ होगी तो निगरानी भी टाइट वाली होगी। वैसे फरिश्ते ज्यादा निगरानी करते हैं, एक मैं मिसाल दे रहा था, निगरानी भी क्या होगी, क्लिप बना देते हैं लोग कि इसने बेगम को फरिश्तों से भी ज्यादा आला कह दिया तो कुफ्र दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। तो निगरानी भी टाइट वाली होगी और बुराई के जज्बात भी पैदा नहीं होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो इसलिए उसको मैंने कहा बेटा इसकी शादी करा दो, और उसको बोले दुल्हन को लेके कहां निकल ले, चिल्ले पे निकल ले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो लूत अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, निकाह करो निकाह, लेकिन वो कौम कह रही है कि हमें रगबत नहीं है। कुरान कहते हैं लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आपकी उम्र की कसम, वो नशे में मदहोश थे, उन्हें पैगंबर की कसम पुरसी और उनकी बेचारगी पे जरा भी तरस नहीं आ रहा था। और इधर लूत अलैहिस्सलाम कह रहे थे लौ अन्न बी कुव्वतन, काश मेरे बाजुओं में ताकत होती, मेरा कोई मजबूत कबीला होता तो मैं आज तुमसे इंतकाम लेता, मैं कमजोर हूं, कुछ नहीं कर पा रहा मैं। कबीला भी अल्लाह की बड़ी नेमत है भाई, खानदान बड़ा होना भी अल्लाह की नेमत। वो तो हिजरत करके आए थे ना लूत अलैहिस्सलाम, इसलिए वहां कोई बड़ा खानदान ही नहीं था उनका। तो जब अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की ये हालत देखी, देखो अल्लाह भी कैसा आजमाते हैं अपने बंदों को। अल्लाह पहले ही लूत अलैहिस्सलाम को बता देते, इतना परेशान होने से पहले बता देते कि ये क्या है, फरिश्ते ये लड़के थोड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ने नहीं बताया, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदों को आजमाते हैं, थोड़ा सा उनको तड़पने देते हैं, तड़पने दो थोड़ा सा इनको। तो अब जब परेशान हुए तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को इजाजत दी कि अब अपना राज फाश कर दो। फरिश्तों ने कहा या लूत इन्ना रसूल रब्बिक, ए लूत हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम नौजवान लड़के नहीं है, लन यसिलू इलैक, ये हरगिज तेरी तरफ नहीं पहुंच सकती, आ ही नहीं सकते यहाँ,
बहुत ताकत दी अल्लाह ने हमें, ये तो हम इस रूप में आए हैं, हमारी ताकत का अंदाजा नहीं हो रहा। हमें अल्लाह ने ये ताकत दी है कि हम एक हाथ पे इस जमीन को उठा के उल्टा दे के पटक दें। फरिश्तों को अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी हैं। अब करना क्या है, फासरी बी अहलिका बिक़ित्इन मिनल लैल, रात के थोड़े से हिस्से में इस घर में आपके जितने अहलो आयाल बच्चे और वालिदैन जो भी होंगे इन सबको लेके आप निकल जाएं। होगा क्या, घेराव है, अल्लाह इनकी आंखें अंधी कर देगा, इनको आप बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए। और ये इसी तरह खुशियां मनाते रहेंगे, ये यस्तबशिरून है ना, ये खुश रहेंगे हालांकि आप घर से बाहर जा चुके होंगे, सिर्फ हम घर के अंदर होंगे, ये इसी तरह खुशियां मना रहे होंगे, इनको आप बाहर जाते हुए नजर नहीं आओगे। और दूसरी बात क्या है, लूत अलैहिस्सलाम इतने परेशान थे ना कि फरिश्तों ने कहा कि जैसे ही सुबह सादिक होगी तो ये सुबह सादिक इन पर क़यामत बन के नाजिल होगी और इनके लिए अजाब का पैगाम लेके आएगी। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग हो चुके थे कि वो परेशान थे कि सुबह सादिक में कहीं ज्यादा वक्त तो नहीं है, तो बहुत टाइम हो जाएगा, उस दौरान ये कुछ कर ना ले। तो वो फरिश्तों ने कहा इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह अलैसा अस्सुब्हु बिक़रीब, इनसे जो वादा किया है ना अल्लाह ने अजाब का, वो सुबह का वादा किया है, क्या सुबह करीब नहीं है? आप झांक के देखें, सुबह सादिक का वक्त अभी आने ही वाला है। तो पूरी रात इनसे जो बहस मुबाहिस इसमें रात का बहुत हिस्सा गुजर चुका है, सुबह सादिक का वक्त बस आना ही चाहता है। कुरान कहता है हाँ, और ये कहा वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप अपनी कौम को बता दें जो ईमान लाए कि अजाब आएगा, लेकिन आप इस बस्ती से दूर भागे, अजाब आएगा लेकिन आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अल्लाह के अजाब को अपनी आंखों से नहीं देखना। और फिर बता दिया कि आपकी बीवी भी आपके साथ जाएगी, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखेगी, क्योंकि उसको शुबा है ना कि पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो ईमान वाले हैं वो कहेंगे कि जब पैगंबर ने बता दिया कि अजाब आ रहा है और मना कर दिया पीछे देखने से, तो बस मत देखो, यकीन कर लो कि अजाब आ रहा है। वो तो पैगंबर की बात पे यकीन करेंगे ना। लेकिन जिसके दिल में शक होगा वो कहेंगे एक दफा थोड़ा सा गर्दन घुमा के देख लो कि ऐसे ही तो नहीं भाग रहे बिला वजह, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो बीवी है वो तो साथ तो रहेगी वो शौहर के, तो वो इस नीयत से निकल आई कि भाई जहां शौहर जा रहे हैं मैंने भी वही रहना है। लेकिन वो फिर उसने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा कि अजाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ही पीछे मुड़ी है एक पत्थर उसके भी सर पे आके लगा और वो भी वही हलाक हो गई। अल्लाह कहते हैं ऐसी पत्थरों की बारिश बरसाई है मुसव्वमतन इंद रब्बिक, वो एक एक पत्थर पे लिखा हुआ था कि ये किसके सर पे जाके लगेगा। और फिर क्या किया है, पत्थरों की बारिश होने के बाद फरिश्तों ने उस जमीन को उठाया। कुरान कह रहा है फजालना आलियहा साफिलहा, क्या अजीब अल्फाज हैं, कुरान की बलागत है। फरमाया हमने जमीन के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया, ऐसा ज़ल्ज़ला आया कि सब हलाक हो गए। और फिर अल्लाह ने कुरान में जब ये आयतें नाजिल की तो कुरान में बताया कि वइन्नकुम लतमुर्रून अलैहा, कि तुम जब तिजारती सफर के लिए शाम और दूसरे इलाकों के लिए जाते हो तो लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के खंडरात आज भी तुम्हारे करीब से गुजरते हैं। आज तक उस बस्ती के खंडरात के निशानात मैंने बाकी रखे हुए। पूरी कौम को अल्लाह ने हलाक कर दिया। और लूत अलैहिस्सलाम उस कौम से कहते थे इन्नी लिअमलिकुम मिनल कालीन, तुम जो ये गंदा अमल कर रहे हो गवाह रहना इस पर कि मैं इस अमल पे खुश नहीं हूं। इससे पता चलता है कि जब आप बुराई देखें तो बुराई अगर आप छुड़वा नहीं सकते तो कम से कम बरात का ऐलान कर दें कि भाई ये आपका हेडिक है, हम इस अमल को पसंद नहीं करते। मेरे पास एक शख्स का फोन आया कि यूके के लिए मुझे वीजा मिल रहा है, लेकिन वीजे में शर्त यह है कि अपने आप को गे लिखवाना पड़ता है। मैं हूं नहीं लेकिन झूठ मूठ लिखवा सकता हूं मैंने कहा मेरे भाई अव्वल तो हमें जो मालूमात है वो ये कि सिर्फ लिखवाने से काम नहीं चलता। वो बाकायदा टेस्ट करते हैं कि खानदानी बेशरम या बेगैरत है या नहीं है, वो टेस्ट से अंदाजा लगाते हैं कि झूठ तो नहीं बोला। और मैंने कहा ऐसी बात झूठ मूठ लिखवाना भी गैरत के, ये तो अगर कोई हो भी तो भी ये कहे कि मैं नहीं हूं, नहीं यारी बात, कोई फखर की चीज थोड़ी है। अगर आपने अल्लाह ने करे चोरी की, लोग आपसे पूछे आप चोर तो नहीं है, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खानदानी चोर हूं माशाल्लाह, ये तो अल्लाह का बड़ा फजल है। भाई चोरी की भी है तो अपने गुनाह को छुपाए ना। भाई ALP 813 टैंकर खड़ा हुआ है, ये हटा दें। किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, वो टैंकर की वजह से वो गाड़ी नहीं चला पा रहे, तो आप बताओ शरीयत में गुनाह को छुपाने का हुक्म है ना, अपने गुनाह पे को भी छुपाने का हुक्म है। अगर आपने जिना किया और कोई आपसे पूछता है आपने जिना तो नहीं किया, इस्लाम में इजाजत नहीं है बताने की कि हाँ मैंने किया है। आप बोले तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन होते हैं पूछने वाले। ये भी ना कहें कि मैंने नहीं किया और ये भी ना कहें कि मैंने किया है। अब ये भी ना क्यों नहीं कहें कि मैंने नहीं किया, इसलिए कि हमारे हजरत से किसी शख्स ने पूछा कि वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि तुम तहज्जुद पढ़ते हो, तो हजरत ने फरमाया आप उससे बोले कि तुम्हें क्या जरूरत है मुझसे पूछने की मैं पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता है। इसलिए कि आज वो पूछ रहे हैं तहज्जुद पढ़ते हो, आप कहेंगे हाँ पढ़ता हूं, वो कहेगा कभी किसी कोई बदकारी तो नहीं किसी से। तो अगर बिलफर्ज आपने की होगी तो आप कहेंगे क्यों पूछ रहे हो, कहेंगे अच्छा जब तहज्जुद का पूछ रहे थे तो उस वक्त तो बता दिया था। आप लोग की जब समझ में नहीं आ रहा तो उसकी कहां समझ आएगा। भाई वो कहेगा जब तहज्जुद का पूछा तो आपने बताया हाँ पढ़ता हूं, और जब मैंने पूछा कि कोई उल्टा काम तो नहीं किया जिंदगी में, तो अब आप कह रहे हो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो उसूल यही है कि कोई अच्छाई का पूछे या बुराई का। जो आपका पर्सनल मामला है वो किसी के सामने शो करने की इजाजत नहीं है। उलमा ने यहां तक किताबों में मसला लिखा है कि अगर हुकूमत ने आपको बुलाया, बादशाह ने, अब तो हुकूमत तो ये काम के लिए नहीं बुलाएगी आपको, उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या है,
पहले बादशाह क्या करते थे, वो समझते थे कि बुराई खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो बाज दफा बंदे को बुला के पूछते थे तुमने जिना तो नहीं किया। अगर वो कहता था किया है तो फिर उसके कोड़े लगाते थे। तो उलमा ने लिखा है अगर बादशाह को इस किस्म की कोई खारिज की बीमारी है, कोई गवाह है नहीं, कोई या तो हो ना कि लोगों ने गवाही दी हो, खुद से आके लोगों से तफ्तीश कर रहा है कि भाई तुमने ये तो नहीं किया, तो उलमा ने यहां तक लिखा है कि इस शख्स के लिए झूठ बोलना जायज है। वो कहते मैंने नहीं किया, इसलिए कि बादशाह को इतनी लोगों के अंदर घुसने की इजाजत नहीं है कि जा जाके खुद से पूछ रहा तूने चोरी तो नहीं की, तूने ये तो नहीं किया, तूने वो तो नहीं किया, और पकड़ पकड़ के लोगों के चित्रौन लगाता रहे। तो जब अल्लाह ने वो गुनाह छुपा दिया तो दूसरा क्यों उस गुनाह को जाहिर करे? तो यहां पर शरीयत ने इजाजत नहीं दी अपने गुनाह को लोगों के सामने जाहिर करना। तो मैंने उससे कहा मेरे भाई यूरोप के वीजे के लिए ये कहना झूठ के मैं गए हूं, ये बड़े, मैंने कहा अगर आप सच्ची मुच्ची में भी हो तो आप इस पे रो, अल्लाह के सामने जाके गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ये गंदी आदत मुझे पड़ गई, मुझसे छुड़वा दे, और जैसे तूने पर्दा डाल दिया मेरे गुनाह पे पर्दा डाल दे। मैंने कहा अगर सच्ची मुच्ची में भी हो तो उनके सामने इकरार नहीं करना, ये बहुत ही ज्यादा बेशर्मी की अलामत, ये कोई काबिल फखर थोड़ी कि मैं हूं तो मुझे भेज दें आप, मैं आपके मयार पे माशाअल्लाह पूरा उतरता हूं। और इससे अंदाजा लगाओ इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है, कितनी अच्छी कौमें हैं, कितनी ज़हीन कौमें हैं, लेकिन इस्लाम ना होने की वजह से कैसे बहक गए कि सारे दुनिया के जितने भी वो है ना इस टाइप के, जिनको उर्दू में बड़ी मशहूर गाली है मगर वो मिंबर पे नहीं दे सकता, इस किस्म के लोगों को स्पेशली क्या दिया जाता है, तो कुछ दिनों में ऐसे ममालिक इन लोगों के मुल्क बन जाएंगे। आई बात समझ? जो हम गाली देते हैं ना लोगों को तू ऐसा है, तो सारे इस किस्म के लोग तो पूरी पूरी रियासतों में ऐसे लोगों को जमा किया जा रहा है। ये अकल पे, उनके यहां भी बहुत से लोग इसको अच्छा नहीं समझते। आपको पता है एक दफा यूके की असेंबली में, लंदन की असेंबली में जब ये बिल पास हो रहा था ना कि इसको अलाउ इजाजत दी जाए, तो वो इसके नाजायज होने की उनके पास कोई दलील नहीं थी अकल के लिहाज से। कहते क्यों गलत है ये? तो वहां हमने बड़ों से सुना कि असेंबली में एक गोरा बैठा हुआ था, उसने उस वक्त ये कहा कि काश हमारा मजहब इस्लाम होता तो हम इसको गलत साबित करते कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब मजहबी रियासत नहीं है, तो अब हमारे पास इसको नाजायज करने के लिए कोई दलील नहीं है कि क्यों गलत है, इसलिए मजबूर होकर इसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ समझ रहे हैं, इस पे पाबंदी लगाना। तो इस्लाम बहुत जबरदस्त चीज है जिसने आपको बहुत सारी गंदगियों से रोक दिया, और इस्लाम मुसलमान अल्लाह के सामने हथियार डाल देता है। अल्लाह जब तूने कह दिया गलत तो अब सही नहीं हो सकता। तो भाई जिसको भी ये बीमारी लगी है, अल्लाह का वास्ता अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करो। हजरत हकीम अख्तर साहब के खुलफा हैं बहुत सारे, उनसे बैत हो जाओ। जामे तो रशीद में बहुत सारे उलमा हैं जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खुलफा में से हैं, उनसे बैत हो जाओ। और बड़े बड़े मशाइख हैं, उनसे जाके बैत होकर उनको लिख के दो कि मुझे में बीमारी है, मुझे कोई तरीका बताएं कि ये बीमारी मुझसे छूट जाए। तो जो शख्स छोड़ना चाहता है, वइन्नी लगफ्फारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहा, अल्लाह कहते हैं मैं ऐसे शख्स के लिए मेहरबान हूँ, गफ्फार हूँ जो इधर आना चाहता है। और अगर इसी पे राजी हो तो करते रहो। फिर ये याद रखो, ये बुढ़ापे में भी ये बीमारी नहीं छूट, बदनाम हो जाओगे, जलील हो जाओगे, लोग उंगलियां उठाएंगे कि ये गंदा आदमी, औलाद उंगलियां उठाएंगी कि हमारा बाप बुरा। ये बुराई छुपती नहीं है, ये पकड़ा जाता है इंसान कहीं ना कहीं। अल्लाह ताला हम सबको इस बुराई से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और अपने बच्चों की भी निगरानी किया करें, यहां तक निगरानी करें कि जो कजन जब 10 साल के हो जाते हैं, इनको एक बिस्तर पे सोने की इजाजत, बोलो भाई नहीं। माए इस बात का ख्याल करें कि जब आपका बच्चा 7-8 साल का है तो उसको कजनों के साथ भी तन्हाई में जमा ना होने दें। खवातीन इस बारे में बेपरवाह होती हैं, वो क्या करती हैं, 6-7 साल का बच्चा है तो वो कजन ले गए, उसको कोई जो है ना, ज्यादातर बीमारी ये कजनों से फैलती है, बता दूं मैं। कजन में कोई एक भी गंदा होगा ना, वो क्योंकि उनसे इंसान बेतकल्लुफ होता है। हमारे पास जो केसेस आते हैं जब उनकी तहकीक में जाओ तो अक्सर में क्या होता है, कजनों में कोई ये खराब है ना, वो सबसे पहले किसको निशाना बनाता है, अपने कजन। और उनसे लोग एहतियात भी नहीं करते कि ये तो भाइयों की तरह है। तो वो क्या मसला करते हैं कि वो अपने कजन को ले जाएगा कहीं तन्हाई में, माएं कह रही है कि बच्चों के साथ खेल रहा है, वो हाथ लगाता रहेगा, उसकी आहिस्ता आहिस्ता आदत को क्या कर देगा, खराब। तो बाप हर वक्त बच्चों के साथ नहीं होता, माँ की जिम्मेदारी है जब अपने 6-7 साल 8 साल के बच्चे को, या इसकी बड़ी उम्र 15 साल, अपने बच्चों के साथ कहीं अपने मैके जाएं या कहीं भी जाएं तो बच्चे पर नजर रखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कजन इसको तन्हाई में लेके कहीं जा रहे हो। बच्चों को, अपने बच्चों को कजन के साथ एक बिस्तर पे सोने बोल लो। भाई मैं ये नहीं कह रहा सारे कजन गलत होते हैं, एक गलत की वजह से 100 के साथ एहतियात करनी पड़ती है। अरे जो भी किसी औरत की तरफ देखता है तो गलत इसे थोड़ी देखता है, लेकिन बहुत से देखते भी हैं, तो उन एक की वजह से सबको कहा जाता है कि औरत देख के क्या किया करो, इसी वजह से, वरना सारे को ठगी थोड़ी होते हैं कि जिसको भी देख रहे गलत नहीं से देख रहे हैं। तो एहतियात तो चंद एक की वजह से सबको हुक्म दिया जाता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अपने पैसे अपने बटवे में छुपा के क्यों रखते हो? क्या ये सारे चोर बैठे हुए यहाँ पे? अरे भाई एतकाफ वाले जितने यहाँ बैठे हुए हैं अपने मोबाइल भी छुपा के रखेंगे हैं, अपने पैसे भी बहुत लॉकर में डालेंगे, और ये सारी, तो क्या ये सारे एतकाफ वाले चोर हैं? सबसे एहतियात की जाती है इसलिए कि कोई भी चोर हो सकता है जिसके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं है, तो उस एक की वजह से सबसे एहतियात। तो यही उसूल वहां क्यों समझ में नहीं आता कि भाई अपने बच्चे को बचा के रखो लड़कों से, 100 में एक अगर गलत हुआ तो हमें उस पे लिखा हुआ नहीं है, उस एक की वजह से बाकी 99 से भी
احتیاط کرنی پڑی. تو مائیں خاص طور پر خیال کریں اپنے بچوں کا, جب جاتی ہیں عید بقرعید پہ ملنے کے لیے, کہیں بھی رہتی ہیں جا کے, اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھیں, کزنوں کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہونے دیں. سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بستر پہ بچہ کزن کے ساتھ سو جائے, نہ. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بے خیالی میں ادھر ادھر ہاتھ لگ گیا, اس سے جذبات بھڑک گئے, تو یہاں سے عادت شروع ہو جاتی ہے, پھر یہاں سے عادت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بہن کے ساتھ بھی بچے کو ایک بستر پہ سونے نہ دیں. ہاں سگا بھائی ہے اور قریب العمر ہیں, ان میں یہ خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ سب احتیاطیں بہت ضروری ہے. آج میں نے بیان اس لیے لمبا کر دیا کہ آج سیکنڈ لاسٹ بیان ہے, کل آخری بیان ہوگا. تو یہ چیزیں چونکہ, اور یہ میں پورے مہینے سے اس پر بولنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا میں اس وقت بولوں گا جب اعتکاف کی ایک بڑی تعداد ہوگی, کیونکہ میں اس موضوع کو بہت اہم سمجھتا ہوں اس زمانے میں. اگر آپ نے, ماں باپ نے اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں کیا تو بھائی یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, بچے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.